Subscribe the channel and press the bell icon so that you never miss any updates. یہ سنگل گاڈ بول کے ایک بندہ ہمارے ساتھ بیک سٹیج میں جڑا ہے. آج اس کے ساتھ اتنا بوال ہو گیا, اللہ نے اس کے ساتھ جو کر دی. یہ سٹارٹنگ میں آتے کیا بولا تھا سدھارتھ بھائی کہ لوگ تو اسلام کا دبدبا چاروں اور. آج سالا جتنے بھی لوگ جڑے سب کے سب ایکس مسلم, اس میں سے ایک عالم بھی تھا, ٹھیک ہے, وہ قرآن کے آیتیں ایسے پڑھ رہا تھا جیسے اس نے مطلب پورا قرآن یاد کر لیا ہو. تو اس کے سامنے ایسی چیزیں جو ہو گئی حادثہ اتنے سارے, سب کے سب ایکس مسلم ہمارے ساتھ آ جا کے جڑے اور ڈاؤٹ والے لوگ جڑے, تو یہ بیچارہ پھٹ پڑا, ٹھیک ہے علی بھائی, اور یہ نکل گیا تو پھر سے آ رہا ہے بار بار کر کے جلن کے مارے. اللہ نے پرینک کر دیا اس کے ساتھ. باقی علی بھائی کافی ٹائم کے بعد ہمارے ساتھ جڑے ہیں, اور سب سے پہلے تو میں پبلکلی ان کو کانگریچولیشن کہنا چاہتا ہوں. بھائی ہمارا بھائی جو ہے آفٹر آل فادر بن گئے ہیں, اور وہ بھی ایک خوبصورت سی بیٹی کے. سو کانگریچولیشن ونس اگین پبلکلی علی بھائی, اینڈ موسٹ ویلکم ٹو دا اسٹریم. تھینک یو یار, تھینک یو سو مچ. اور بس اس طرح کے جتنے بھی لوگ آتے ہیں یار, میرا جو بیسک مدعا ہوتا ہے وہ یہ ہوتا ہے کہ یہ آپ جتنے بھی عقائد مجھے اپنے منہ سے بتا رہے ہیں یا بتا رہی ہیں, کیونکہ دیکھیں ایز اے مسلم آپ بھی مسلمان رہے ہیں, میں بھی رہا ہوں, تو یہ بات کوئی چھپی نہیں ہے, بالکل اٹس لائک رائٹنگ آن دا وال کہ اسلام میں احکامات کہیں سے اگر آئیں گے تو وہ قرآن سے آئیں گے, جی, اور اگر ایک چیز اگر قرآن میں نہیں ہے تو وہ اللہ کا حکم نہیں ہے. بھائی ایز اے مسلم میرا تو یہ ماننا تھا. یہ پتہ نہیں آج کل کے مسلمانوں کو کیا ہو گیا ہے کہ عقیدے اپنے بیان کرتے ہیں کہ ہمارا عقیدہ یہ ہے اس بارے میں ہمارا عقیدہ یہ ہے وغیرہ وغیرہ وغیرہ, لیکن وہ عقیدہ لیا کدھر سے ہے؟ قرآن سے نہیں لیا. تو قرآن سے نہیں لیا تو پھر یہ احکامات میں کیسے شامل ہو گیا؟ کیونکہ مجھے تو ایسا لگتا تھا کہ قرآن ایک کمپلیٹ بک ہے, جیسا کہ دعویٰ ہے. دعویٰ یہی ہے نا کہ قرآن ایک کمپلیٹ بک ہے, تو مجھے تو ایسا لگتا تھا کہ سارے اللہ کے احکامات اس کتاب میں لکھے ہوئے ہوں گے. لیکن اگر آپ نے ایک چیز اس کتاب سے نہیں لی ہے تو پھر کہیں سے بھی آپ نے لی ہو, پھر وہ اسلام کا حصہ کیسے بن گیا؟ جیسے کہ کل میری ایک بحث ہو رہی ہے, ایک عالم صاحب آئے, وہ بھی اسی طرح آیتوں پہ آیتیں رٹ کے طوطے کی طرح وہ بولے جا رہے, اور ان سے صرف ایک سوال میرا یہ تھا کہ قرآن میں شادی سے پہلے سیکس کرنا کدھر منع ہے؟ نہیں, وہ زانیہ مردوں کے لیے زانیہ عورتیں اور بلا بلا بلا. میلا بھائی میرا سوال سنو, تم یہ کہہ رہے ہو کہ اسلام میں اللہ کا حکم ہے کہ شادی سے پہلے سیکس کرنا منع ہے, یہ حکم قرآن میں کدھر ہے؟ تو کوئی جواب نہیں. تو پھر یہ عقیدہ لیا کہاں سے بھائی؟ تمہارے اپنی سلطنتیں پڑھیں آپ, اپنے عباسیوں کو پڑھیں آپ, اپنے بنو امیہ کو پڑھیں آپ, ان کے یہاں سیکس بہت عام تھا, خرید کے سیکس ہو جاتا تھا. تو یہ آپ نے نیا عقیدہ کدھر سے نکالا بھائی؟ جو بھی آپ نے طریقہ نکالا ہے, کیا وہ قرآن میں ہے؟ یا قرآن کہہ بھی رہا ہے کہ 2 گواہ لے آؤ, یا قرآن کہہ بھی رہا ہے کہ کسی ولی کی موجودگی ہے, یا قرآن کہہ بھی رہا ہے کہ صیغے پڑھو اور اس کے بعد ایک دوسرے کے میاں بیوی بنو گے آپ؟ اور جب قرآن نہیں کہہ رہا ہے تو یہ سارے عقیدے اسلام کا حصہ کیوں بنے ہیں بھائی؟ پھر حج کرو, قرآن میں کہاں ہے حج؟ قرآن میں کدھر ہے؟ کوئی ایک قرآن کی آیت زکوٰۃ دو اپنے کے اوپر جمع کیے ہوئے دکھاؤ قرآن کی کوئی ایک آیت کہ جس میں مال اور زکوٰۃ ایک ساتھ لفظ آئے ہوں. تو یہ کہاں سے آئے ہیں یہ عقیدے؟ یہ کون مسلمان ہیں آج کل کے کہ بھائی آپ مسلمان ہو, آپ کا کام نہیں ہے اسلام بنانا, نئے نئے احکامات بنانا. آپ کا کام ہے, آپ کے پاس جو کتاب ہے صرف اس کی تصدیق کر دو. اور سمیر بھائی بول رہا ہوں کہ اپنی کتاب کی تصدیق کیوں کرتے؟ تمہارا اللہ میاں کہ کوئی اور ہے کیا؟ تمہارا رسول محمد نہیں ہے کوئی اور ہے کیا؟ تمہاری کتاب یہ قرآن نہیں کوئی اور کتاب ہے کیا تمہاری؟ تو اس کی تصدیق کیوں نہیں کرتے بھائی؟ یہ نیا نیا اسلام کائیں کو لے کے آتے ہو؟ سناتنی کی کیا تعریف ہے؟ سناتنی کی تعریف کرنے کی بات یہ ہے کہ وہ کہتا ہے میں اپنی کتاب کی انٹرپریٹیشن خود کروں گا بھائی. تو یہ جذبہ اور یہ بہادری اور یہ ٹٹے آئی ایم سوری یہ مسلمانوں میں کیوں نہیں ہے؟ انہوں نے کیوں 400 پرانی تفسیریں پڑھ کے اپنے گلے سے لگا کے رکھنی ہے؟ بھائی خود کرو تفسیر بھائی. تم اگر کوئی اچھی ٹرانسلیشن کے ساتھ آ سکتے ہو, کسی اچھی پیسفل تفسیر کے ساتھ اگر تم آ سکتے ہو, اگر تم خود کسی پیسفل ٹرانسلیشن کے ساتھ آتے ہو, تو اب تو میں نے وہ رول بھی ختم کر دیا آپ لوگوں کے لیے کہ دیکھو ابن کثیر نے یہ لکھا ہوا ہے, دیکھو اس نے یہ لکھا ہوا ہے, دیکھو یہ مولوی یہ لکھ کے گیا, دیکھو تمہارا امام یہ لکھ کے گیا. اب تو میں نے یہ طریقہ بھی چھوڑ دیا ہے. میں تو اب مسلمانوں کو موقع دے رہا ہوں, کرو اپنی کتاب کی ٹرانسلیشن, نکالو اس کے اندر سے پیس. امن کی بات کرتے ہو نا, تو اس میں سے نکالو امن, اور میں ایکسیپٹ کر لوں گا بھائی تمہارے امن کی ٹرانسلیشن. لیکن تمہارا مسئلہ یہ ہے کہ تم لوگوں نے ٹرانسلیشن کرنی بھی نہیں ہے خود.
तुम लोगों ने उसी पे चिपके रहना है, जो वही मुतशद्दिद और वही वायलेंट तफसीरें तुम्हारे पास जो पड़ी हुई हैं, तुमने उससे चिपक के रहना है। तुम ये जिम्मेदारी भी कबूल नहीं कर रहे कि चलो यार हम हटाते हैं इन चीज़ों को, चलो यार हम एक नई ट्रांसलेशन लेके आते हैं, हम एक नई इंटरप्रिटेशन लेके आते हैं जिसमें कत्लो गारत ना हो, जंगो जदल ना हो, लौंडी लपाड़ा ना हो, हम लेके आते हैं। लेकिन ये हिम्मत भी नहीं करनी है। मैं तो एक्सेप्ट करने को तैयार हूं तुम्हारी नई वाली ट्रांसलेशन भाई, लेकिन लेके तो आओ। बिल्कुल। और अली भाई एक चीज देखिए कि अगर इनके कुरान और हदीसों में लिखा हुआ होता, सपोज मान लीजिए कि अगर ऐसा लिखा हुआ होता कि तुम अपने अगर किसी का शौहर मर जाता है तो उसके शौहर के साथ उसकी जिंदा बीबी को शौहर के पास कब्र दे दो, अगर लिखा हुआ होता, ये साले जिंदगी में चेंज नहीं करते, अभी तक उस चीज को फॉलो करते। मैं लिख के दे सकता हूँ ये चीज, ये जी जी इतने बिल्कुल ज्यादा फॉलो बिल्कुल। करते हैं चीजों को। तो ये तो चीज है कि ये अपनी चीजों को बदलते नहीं। आज जो है गुलाम रखने का कॉन्सेप्ट आप देखेंगे कि यूनाइटेड नेशन ने जोर जबरदस्ती करके, मतलब बहुत सारे देशों ने प्रेशर क्रिएट करके जो सऊदी अरब को जो है वहां पे साइन करवाया था, अरे स्लेवरी बैन करने वाला जो चीज था। हमारी एक ना जी पाकिस्तान पीपल्स पार्टी हमारे पॉलिटिकल पार्टी है, आसिफ अली जरदारी, बेनजीर भुट्टो और ये बिलावल भुट्टो वाली पार्टी जो है ना, तो ये पीपल्स पार्टी है। इसकी एक एमएनए है शर्मिला फारूकी, वो अभी उसने एक बिल पास कराने के लिए असेंबली में एक बिल जमा कराया कि पाकिस्तान में कम से कम शादी की उम्र, अभी भी खैर उसने 18 नहीं 17 बोला, उसने बोला 17 साल कर दी जाए पाकिस्तान में लीगल एज मैरिज की, 17 साल कर दी। एक बिल वो हुकूमत वो असेंबली में लेके गई है, वो बिल मुल्ला हो गए। ये आज मुसलमान आके हमें बोलते हैं सही बुखारी की हदीस में ये मसला है वो मसला है, नहीं वो 9 साल की नहीं थी, वो फलां ने उन पे जरा करके जो है हजरत आयशा को 19 साल का कर दिया। ये सारी बातें यूट्यूब की हैं भाई, ये सारे मौलवी पहुंच गए वही हदीस लेके, असेंबली में पहुंच गए वही हदीस लेके कि भाई दिमाग खराब है तुम लोगों का, हमारे रसूल अल्लाह ने 9 साल की बच्ची से शादी की है, तुम कैसे क्या कौन होते हो कि पाकिस्तान में तो आप हालात देखें कि यहाँ पे आके बहस करनी है कि नहीं हदीस सही नहीं है, और इस हदीस में ये अली मसला भाई है, और इस पे फला मुहद्दिस ने जरा की हुई है वगैरह वगैरह वगैरह, यहाँ आके हमसे अरे लड़ना है उस हदीस के लोग ऊपर। बोल रहे हैं कि मोहम्मद पेडोफाइल नहीं है, लेकिन वो जाके बोले नहीं पेडोफाइल है, तुमको दिक्कत क्या हाँ है? अरे भाई मैं कह रहा हूँ मोहम्मद मेडोफाइल नहीं था, ये सारी झूठी हदीसें। अब ये तो मैं इस्लाम के फेवर में बात कर रहा हूँ ना यार, वो भी नहीं कबूल नहीं पेडोफाइल है, वो भी कबूल नहीं है। नहीं नहीं हमारा नबी बच्चा बाज था, नहीं नहीं हमारा नबी बच्चा बाज था। अरे मैं तुम्हारी साइड ले रहा हूँ कि भाई मैं कह रहा हूँ ये हदीसें झूठी हैं, इनको उठा के फेंको, तब भी तुम्हें रास नहीं है, तब भी तुम्हें यही कहना है कि नहीं नहीं मेरा नबी बच्चा बाज था। कैसे बोल दिया पेडोफाइल नहीं है? मार दो साथ में रसूल। जी मैं अली भाई के लिए बस ये एक और भी चीज थी मेरे पास, वो पेश करनी, देख रहा हूँ उसको, लेकिन तब तक के लिए इससे काम चला अली भाई। बिला वजह के लेकिन आप निकालते निकालते कुफर और शिर्क में रहने वाले अच्छे से देखो हदीस क्या है। हदीस क्या है? हदीस है सुनन निसाई की, और हदीस क्या कोसी है भाई? बुक नंबर 26 हदीस नंबर 60 अरबिक वर्जन में, और इंग्लिश ट्रांसलेशन में वॉल्यूम नंबर 4 बुक नंबर 26 हदीस नंबर 3257। इस हदीस में बताया गया कि अम्मा आयशा रज़ियल्लाहु तआला से नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का निकाह 6 साल की उम्र में हुआ था और विदाई 9 साल की उम्र में। When she was married, she was 6-year-old, and after puberty, at 9-year-old, she went to consummate the marriage with Muhammad sallallahu alaihi wasallam. This is the authentic hadith. ये एक authentic hadith है। ऐसा हाथ उसके ये मैंने बीच में सुना, जी अली मैंने भाई। सुनन निसाई तक सिर्फ सुना, उसके बाद क्या बोला इसने? अच्छा जी मैं दोबारा चला देता हूँ, और इसके बाद एक और मजेदार चीज भी है, वो जो आपने कहा कि पाकिस्तान में ये असेंबली में गए, वो भी आपको वीडियो दिखाऊंगा। बिला वजह के कुफर और शिर्क में रहने वाले अच्छे से देखो हदीस क्या है। हदीस क्या है? हदीस है सुनन निसाई की, और हदीस क्या कोसी है भाई? बुक नंबर 26 हदीस नंबर 60 अरबिक वर्जन में, और इंग्लिश ट्रांसलेशन में वॉल्यूम नंबर 4 बुक नंबर 26 हदीस नंबर 3257। इस हदीस में बताया गया कि अम्मा आयशा रज़ियल्लाहु तआला से नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का निकाह 6 साल की उम्र में हुआ था और विदाई 9 साल की उम्र में। When she was married, she was 6-year-old, and after puberty, at 9-year-old, she went to consummate the marriage with Muhammad sallallahu alaihi wasallam. This is the authentic hadith. ये एक authentic hadith है। और डंगर बहुत कॉन्ज्यूमेटेड, और डंगर के बच्चे, कॉन्ज्यूमेटेड का मतलब जुदाई नहीं होता या विदाई नहीं होता, होता है कॉन्ज्यूमेटेड का मतलब। जाहिल आदमी,
कॉन्ज्यूमेटेड को विदाई कर दिया, लानत तेरी शक्ल पे मुल्ला। और ये ओ वो भाई, डंगर है, ये अली भी तो भाई। वाजिबुल कत्ल है ना, ये भी तो वाजिबुल कत्ल हो गया अभी। अच्छा मिर्च भाई, अली भाई ये वो डंगर है जो साहिल साहब की और मेरी बेटी को गाली देता है, कहता है समीर की बेटी ऐसे से हो रही है, साहिल की बेटी ऐसे से हो रही है। ये वो सुअर मुल्ला है जो हमारे साथ डिबेट से भागता है, टीवी चैनल से डिबेट छोड़ करके भागता है और हमारी बहन को, हमारी बेटियों को गाली देता है। बाकी आप जो पाकिस्तान के हालात के ऊपर आपने जो बात कही है, वो भी वीडियो सर आपकी पेश नजर खिदमत में। उम्मे कलसूम का निकाह किस उम्र हुआ? 11 साल की उम्र है। हजरत उमर ने हजरत अली से ख्वाहिश का इजहार किया। आपको अल्लाह के रसूल ने अहले बैत में करार दिया है, मेरी ख्वाहिश है मैं आपकी बेटी से शादी कर लूं, मैं भी अहले बैत में शामिल हो जाऊं। अली ने उमर के निकाह में बेटी दी। उमर कितनी? इसको मैंने इसलिए रोका है, मैं दोबारा प्ले करूंगा अली भाई। मेरी जिंदगी का सबसे पहला एतराज ही यही है इस्लाम को लेकर के, क्योंकि मैं तबलीगी जमात में था और हिकायत सबा में एक किस्सा पढ़ा कि उमर जो है अपनी बीवी उम्मे कुलसूम को लेकर के एक औरत की जज्गी के लिए जाता है। तो उम्मे कुलसूम अली की बेटी है, और अली कौन है? मोहम्मद का दामाद और चचेरा भाई। और उमर कौन है? मोहम्मद का ससुर। ओ सुअर के बच्चे, खोते के बच्चे, यहां इंसान अपनी नातिन से शादी नहीं कर सकता, वो डूब के मर जाएगा किसी गंदे नाले में अगर नाना अपनी नातिन से शादी करेगा। ये सुअर का बच्चा उमर अपनी नातिन की बेटी से शादी करके बैठा हुआ है। इनकी हरामजदगी देखिए आप। अरे इतना झूठ है यार ये बात भी। अब मैं कोई इस वजह से नहीं बोल रहा कि मेरा एक फिरके से ताल्लुक रहा है, लेकिन जो सच है वो सच है। इतनी बड़ी झूठ है ये हदीस। आपको मैं हदीस पूरी सुनाऊं, आपके कान जल जाएं। उमर कहता है मैं ये आबे जमजम का जो कुआं है इसको मट्टी से भर दूंगा, मुझे बेटी दे अपनी। मैं मदीने की औरतों को हलाल कर दूंगा अहले मदीना पे, मुझे बेटी दे अपनी। तो ये ब्लैकमेल करके बेटी लिए। और फिर शिया हदीसों में तो खैर और कहानियां लिखी हैं कि वो असल में अली की बेटी नहीं थी, वो एक जिन्नी ऊपर से नाजिल हुई थी और उससे उमर की शादी करा दी थी। हाँ मैं मजाक नहीं कर रहा, सीरियस है भाई। नहीं वो कहानियां वो अलग है, वो देखिए बेटी कैसे ली वो अलग है, लेकिन आप खुद देखिए कि एक नाना अपनी नातिन के साथ शादी नहीं कर सकता। ये ऐसा सुअर नाना था जो नातिन की छोटी सी बच्ची पर नजर गड़ाए हुए है। तो सुने खैर 6 साल की उम्र के बारे में और शादी की उम्र के बारे में क्या बकवास करता है। उम्मे कलसूम का निकाह किस उम्र हुआ? 11 साल की उम्र है। हजरत उमर ने हजरत अली से ख्वाहिश का इजहार किया। आपको अल्लाह के रसूल ने अहले बैत में करार दिया है, मेरी ख्वाहिश है मैं आपकी बेटी से शादी कर लूं, मैं भी अहले बैत में शामिल हो जाऊं। अली ने उमर के निकाह में बेटी दी। उम्र कितनी थी? 11 साल। याद करें, आज असेंबली में बिल पेश हो रहा है, बिल मंजूर हो चुका है, स्टेप वाइज सेनेट की कमेटी तक जा पहुंचा है, वहां से भी इब्तदाई तौर पे मंजूर हो गया है। क्या बिल है? 18 साल से कबल, 18 साल से कबल कोई बंदा यानी कोई मर्द और कोई बच्ची, कोई औरत निकाह नहीं कर सकती। ये खिलाफे शरीयत, खिलाफे दीन, खिलाफे कुरान और सुन्नत, बल्कि पाकिस्तान के आइन की भी खिलाफ वर्ती है। हजरत अली ने बेटी का निकाह किया कितनी उम्र में? 11 साल में। हजरत आयशा की रुखसती कितनी उम्र में हुई? 9 साल में। हजरत आयशा का निकाह किस उम्र में हुआ? 6 साल में। हजरत अमर बिन अल-आस का निकाह किस साल में हुआ? 11 साल में। उम्मत के ये असलाफ, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जात शरीयत है, दीन है। ये कैसा फलसफा है? और कितने अफसोस और दुख की बात है, खुफिया तरीकों से धमकियां लगाई जाती हैं कि ये बात ना की जाए। आज मुआशरे के अंदर इस तरह के लोग पैदा हो गए हैं जो धमकाते हैं कि अगर ये बात की गई गायब कर देंगे, फला फला गायब हो गया। कितने अफसोस और दुख की बात है कि पाकिस्तान जिसको इस्लाम के नाम पे हासिल किया गया, इस पाकिस्तान के आइन के खिलाफ भी ये बिल है। पाकिस्तान के आइन में कुरान और सुन्नत को सुप्रीम लॉ कहा गया है। इस वजह से हम इस रियासत को इस्लामी रियासत मानते हैं, समझते हैं, इसके खिलाफ बगावत नहीं करते। यहाँ खरूज के कायल नहीं बल्कि हराम समझते हैं बंदूक उठाने को, गोली चलाने को, इस्लामी रियासत होने की वजह से। कुरान और सुन्नत सुप्रीम लॉ है। अगर कुरान और सुन्नत सुप्रीम लॉ है तो असेंबली में ये जुर्रत कैसे हो रही है? बार बार बिल पेश किया जाता है। और ये कैसा फलसफा है कि 17 साल 364 दिन
किसी के अंदर निकाह की सलाहियत नहीं रही, अचानक रातों रात वो जादू की कौन सी छड़ी है जो एक दिन में निकाह की सलाहियत पैदा हो गई? यानी 17 साल 364 दिन की बच्ची और बच्चा होगा, वो निकाह नहीं कर सकता, नजायज हराम है। उसको क्या होगा? उसको 3 साल सजा दी जाएगी। 18 साल की उम्र में निकाह पे पाबंदियां लगाने वाले बेजमीर अरकान असेंबली, बेहया, शरीयत के खिलाफ शरीयत का मजाक उड़ाने वाले, ये बतलाएं आपने 18 साल की उम्र में निकाह के ऊपर तो पाबंदी लगा दी है, आपको चाहिए था बालग होने पे भी पाबंदी लगा दी? कोई साइंसी इजाद ऐसी होनी चाहिए कि इंसान के हार्मोन 18 साल से कबल उसको बालग ना करें, या इसके ऊपर भी सजा लगा दी जाए, जो 18 साल से पहले बालग हो गया उसको 2 साल सजा दे दी जाए। कितने शर्म और दुख की बात है। क्या हम मुआशरे के अंदर जना को प्रमोट नहीं कर रहे? जी अरे भाई, आपने जो बात कही वो एक्चुअली वेरीफाइड है। अभी बताइए आप, इस कौम का क्या हो सकता है? यार मैं कह रहा हूँ इस अमेरिका कौम में का कुछ नहीं हो सकता भाई। इस कौम का ये हो सकता है कि इसको जो है ना, क्या बोले, इनको डंडे मारे जाएं बस इनको। मैं डंडे से जी। मेरे ख्याल से अकल नहीं आएगी इन सबको, जो है ना बुराक अलैहिस्सलाम की या फिर याफूर अलैहिस्सलाम की जो है तशरीफ से निकला हुआ वो गोबर खिलाया जाए, जिसका ये सबको ताना मारते हैं। सूली चढ़ा दो, सबको क्रूसिफाई कर दो सबको। हाँ, वही बात मैं बोल रहा था अली भाई। देखिए, मैं एक ऐसा पर्सन हूँ जो हमेशा से ही कैपिटल पनिशमेंट के खिलाफ रहा हूँ और अभी भी हूँ, लेकिन ये खास करके बच्चों के मामले में जो सब लोग आते हैं ना भाई, अली भाई बिल्कुल जीरो टॉलरेंस लगता है कि मैं खुद अपने हाथ से पीस पीस कर दूं इनको, इतना फ्रस्ट्रेटेड होता हूँ इनके ऊपर अली भाई। कितना घटिया लोग हैं यार।